much. Okay, and I hope you all have read the chapter nicely, and I hope you all have cleared with the chapter. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप सो आप सबको समझ में आया जो भी मैंने बताया. गुड आफ्टरनून एवरीवन. Yes. Okay. So today we are going to start with chapter 4 and chapter 3 and first question answer I'll be giving you WhatsApp of that on your group, on your class group by Monday. Okay. चैप्टर 1 मैं इसलिए भेजूंगी बाय चांस किसी ने नहीं लिखा है या किसी को प्रॉब्लम है, कोई कॉपी नहीं कर पाया था व्हाट्सएप ग्रुप में एट द टाइम व्हेन वी वर सेंडिंग ऑन द ग्रुप्स ओनली, जब हमारी लाइव क्लासेस नहीं थी, तो कोई कॉपी नहीं कर पाया, तो आई विल सेंड इट अगेन फॉर यू और सो दैट यू कैन ऑल नोट डाउन इफ एनीबडी इज लेफ्ट. कोई रह गया है वो उसे नोट कर लेगा. और थर्ड का मैं आपको वापस फिर से भेजूंगी बिकॉज वी हैव नॉट डन द थर्ड वन. ओके, एंड आई होप यू ऑल हैव क्लियर विद द चैप्टर, यू ऑल हैव रेड द चैप्टर. सबने पढ़ा है ना चैप्टर? गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. ऐसा तो नहीं है बस मैम को बोल दो, लिख दो कि मैम हमने तो पढ़ लिया, मीन्स मैम थोड़े ना हमें पूछेंगी, या मैम को क्या पता चलेगा? मैम को तो पता चल ही जाएगा. इन क्लास ऑल्सो whenever we'll meet in the class, I'll able to know easily who has done and who has not done. संदीप पढ़ा है चैप्टर? रविता, तेजस, have you read the chapter third? Okay. Why Vishnu? Why? Why you have not read the chapter? Okay. So now I hope your fever is now you are okay. So do read the chapter. Okay. Yes. So now we will start with the chapter, that is chapter number 4, that is formula and function in Excel. अब हम फॉर्मूला और फंक्शंस इन एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे. ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है और हमने प्रैक्टिकल्स भी करे थे. ठीक है, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज पुट करना भी बताया था क्लास में, राइट, आपकी प्रैक्टिकल क्लास में. ओके. So today verbally we'll start with the chapter, right, and then slowly and gradually I will explain you as further we'll move on for the written work. Okay, and all. Okay, good Ayushi, good. Chapter 3 important terms everybody has done. Ravita, Sandeep, Ayush. Ayushi, sorry, Ayushi has done. Okay. Sandeep, have you done? Tejas, Vishnu, Nikhil. Okay. Okay, Sandeep, no problem. Do it today, right? Okay. So now we'll start with our chapter. Okay. So in this chapter, basically the topics which this chapter is going to cover is your formula Excel. Okay, your formulas, whatever the formulas you put in your Excel and you work for it, right? And then how to use the functions in MS Excel, right? आप Excel के अंदर functions को कैसे use करोगे, ठीक है? कौन कौन से आपके functions होते हैं? What are all types of functions which are being used, okay? And some very basic and commonly used functions जो होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे. ठीक है, and you will also use sums, your auto sums,
एवरेज, आप लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, ऑटो सम कैसे ऑप्शन यूज होता है, मैक्सिमम, मिनिमम फंक्शंस, ये जितने भी कॉमन फंक्शंस हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। ये सब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन whenever we meet we'll definitely go for practical also, right? Okay, so I'm starting from page number 46. All of you please concentrate on that. Dear students, till your previous class you learned all about the different features in MS Excel or Excel your. You also learned some advanced features like your sorting, filters, creating series in it, right? Different types of functions हमने उसमें देखे हैं, formulas हमने Excel के अंदर हमेशा put करे हैं और हमने उससे result भी निकाला है, यानी कि हमने output भी मिला है, right? Now in this section we're going to move further and learn the formulas and functions in Excel and to perform calculations automatically by using these functions and formulae. Okay, अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, फंक्शंस यूज करोगे, बेसिकली आप उसको पुट करोगे और आपको आउटपुट मिलेगा। तो वो फंक्शंस क्या है, वो फॉर्मूलाज क्या है, कैसे हमें उन पे वर्क करना है, ये सब हम अब इस एक्सेल में देखेंगे। We'll all going to learn all about the functions and the formulas as the heading given in for your chapter, right? Good afternoon, beta Nehal. Okay, now we'll start formula in Excel की जब हम बात कर रहे हैं, in Microsoft Excel you can perform mathematical calculations. सिंपल एक्सेल हमने पहले भी करा था क्लास के अंदर, ओके, वी हैव डन इन प्रैक्टिकल। तो वहां पे हमने क्या करा था, कैलकुलेशंस करी थी, एडिशन करा था हमने, सब्ट्रैक्शन करा था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। यू विल पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। एंड बेसिकली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो यही होते हैं, आपका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो ये सारे ही फॉर्मूलेज होते हैं जो आप, बेसिक फॉर्मूलेज जो आप पुट करके आप आउटपुट जनरेट करते हो, ठीक है, यू कम विद द आउटपुट, राइट। नाउ formulas are equal equations that perform calculations on values in your worksheet, right? And a formula start with an equals to sign. आप सबको याद होना चाहिए, जब हम क्लास में प्रैक्टिकल्स कर रहे थे तब हमने क्या देखा था, और मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई थी, कि जब भी आप कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला आप परफॉर्म कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप इक्वल्स टू साइन लगाओगे, यू विल पुट द इक्वल्स टू साइन, और उसके बाद ही आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। डू यू रिमेम्बर ऑल, डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? Nobody is listening to me. Have you all remembered? थोड़ा सा आप पीछे जाओगे तो मैं आपको याद आएगा मैम ने आपको क्या बताया था। मैम ने आपको बताया था कि यस, व्हेनेवर यू विल पुट एनी फॉर्मूला, सबसे पहले आपको माइंड में अपने सेट क्या करना है, यू विल ऑलवेज पुट अ इक्वल्स टू साइन। आप सबसे पहले इक्वल्स टू साइन पुट करेंगे, है ना? यस, यस उपलब्धि, गुड आफ्टरनून, व्हाई यू आर लेट टुडे? ओके, यस। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डोंट फॉरगेट प्लीज। अब मैं पहले भी जब आपको प्रैक्टिकल्स में बताती थी आप हमेशा भूल जाते थे कि आपको क्या करना है, इक्वल्स टू साइन लगाना है। उसके बाद यू व्हाट यू टेल मी, मैम हमारा तो आउटपुट आया ही नहीं, मैम इट इज नॉट वर्किंग, नो इट विल नॉट वर्क। If you will not put equals to sign, it will not work. So the first priority to start with is that you have to put the equals to sign. Okay beta, कोई बात नहीं, it's okay उपलब्ध। An Excel formula has general structure and equals to followed by one or more operands which
can be values, cell referencing, range name और function name etc. तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक्वल टू के बाद आप ऑपरेंड्स लगाएंगे, मीन्स आप नंबर लगाएंगे, ओके, आप नंबर पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, राइट। The operands is separated by one or more operations. Obviously, operands आपके हमेशा separate होते हैं, operand को हम separate करेंगे, right? आपने number put करेंगे, तो number जब आप put करेंगे तो वो क्या है, आप formula लगाएंगे तो उसमें greater than, equals to, less than, plus, minus, ये सब put होंगे number के बीच में, right? Okay. Which are symbols that combine the operands such as plus, अभी मैंने आपको बताया plus आपका साइन हो सकता है, greater than आपका साइन हो सकता है, तो आप इनको पुट करेंगे, राइट। आफ्टर इक्वल्स टू आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वल्स टू के बाद आप क्या करेंगे, आपको प्लस करना है, आप उसको पुट करेंगे, नंबर डालेंगे, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, सेल रेफरेंस इज यूनिक एड्रेस। अगर हम सेल रेफरेंस की बात करते हैं तो व्हाट इज, इट इज एन यूनिक एड्रेस फॉर दैट, ओके, and it is the unique address for each cell. And now what is cell, what is cell, who will tell me what is cell, सेल क्या है, मुझे कौन बताएगा, सेल क्या है, ये मैंने आपको क्लास में नंबर ऑफ टाइम्स बताया है। यस संदीप, टेल मी व्हाट इज सेल। Anybody else? Nehal, you don't know what is cell? Nupur? Uplabdhi? Sandeep, see, this thing I have not told you. कि टेबल में सिंगल सेल को, what you have written? टेबल में सिंगल सेल को हम लोग, सिंगल सेल जो बॉक्स होता है उसको हम सेल बोलते हैं। सी द वे यू हैव टोल्ड इट्स नॉट करेक्ट, बट व्हाट यू आर कन्वेइंग टू मी इट इज करेक्ट। जो तुम मुझे बोल रहे हो, बता रहे हो, what you are telling, you are trying to tell me is correct, but the way you have explained is not correct, right? Intersection of rows and columns, is known as your cell, ठीक है संदीप, समझ आया? उपलब्धि, नेहल, नुपुर, इंटरसेक्शन ऑफ, बताया था कि नहीं मैम ने क्लास में, ये सब भूल जाते हो आप लोग, है ना? तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मेक अ सेल, ठीक है। जो आप जिस बॉक्स की बात कर रहे हो संदीप, दैट बॉक्स इज योर सेल, एंड व्हाट इज दैट सेल, इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉल्स, यानी कि रोज और कॉलम्स को इंटरसेक्ट जब होता है, व्हेन दे आर intersect, they have been lines have been made, they have been divided, it is a blocks जो हमारे बन जाते हैं, that is your cell। तो सिंपल लाइन में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज सेट टू बी योर सेल, ठीक है। तो उसी सेल की बात ये कर रहे हैं, लाइक सेल रेफरेंस इज यूनिक एड्रेस फॉर
ईच सेल, जब हम सेल रेफरेंसिंग करेंगे तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा, राइट। मैंने आपको क्लास में बताया था, वही चीजें ये सारी हैं, रिमाइंड हो रही हैं आपके लिए, रिकॉल है ये सारी। आप जब ऊपर आप देखते हो तो उस पे लिखा होता है ABCD एंड 1 2 3 4, तो हर सेल का एड्रेस चेंज होता है। हमने हर एड्रेस का सेल चेंज करा था ना। तो दैट सेम थिंग इज इट इज बीइंग सेड हियर कि हर एक सेल का जो एड्रेस है वो अलग होगा, इट इज डिफरेंट। Okay, cell are identified by a specific column, letter and row number. So cell 5 identify fifth cell down in column A, right? जब हम कॉलम ए की बात कर रहे हैं तो ए में फिफ्थ सेल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A5, ओके, ABCD, ओके, एंड 1 2 3 4 5। तो हम कॉलम की बात कर रहे हैं, फिफ्थ कॉलम की, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, A5, राइट। फर्स्ट फर्स्ट ए रो हो गई हमारी, और उसका हमने फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ में हम आए हैं, तो वो सेल एड्रेस हमारा बन गया A5। ठीक है, इतना समझ आया आप सबको? See, I'm not going so fast. I hope you all are understanding what I am telling you. समझ आ रहा है सबको? Okay. When entering formula, uses cell reference instead of actual data whenever possible. For example, enter the formula A1 plus A2 instead of 10 plus 20. राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल एड्रेसिंग कर रहे हैं। हम सेल एड्रेस करेंगे तो हम हमेशा सेल का जो हेडिंग है उसको नोट डाउन करेंगे, राइट। आपके एक ए फर्स्ट में लिखा है 10 और सेकंड में हमारे लिखा है 20, लेकिन वो है दोनों ए रो में, तो हम उसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2। समझ आया, क्लियर हुआ? ओके, विष्णु समझ आ रहा है ना, मतलब पक्का श्योर यू आर? ठीक है। नाउ, range is a group of related cell in the worksheet. The range cell are separated by colon. Colon means two dots. When two dots are there, that means colon. Okay. For example, the range name A1 and B3, including cell A1, A2, A3, B2, B1, B1, B2 and B3। जब भी आपके सेल में हम लिख देंगे A1 कोलन A3, लाइन नंबर 2 ऑफ रेंज, पेज नंबर 46, जब आपके लिखा हुआ है उसमें A1 कोलन B3, तो इसमें कौन कौन से सेल आपके आ जाएंगे, कौन कौन सी रोज और कॉलम्स की ये बात कर रहा है, वो आपको देखना है। ये बात कर रहा है आपका A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3। A1 से लेकर B3 तक इसने काउंट करा है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको सबको बुक्स में, यू और कैन सी, यस। तो वो कहां से कहां तक हो गया आपका, कितने सेल्स को उन्होंने ले लिया है, A1 से लेकर B3 तक, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3। ठीक है, टोटल 6, ओके, 6 कॉलम्स की ये बात कर रहा है, राइट। और ये कब हम ऐड करेंगे, जब हम बात करेंगे कोलन की, जब हम लगाएंगे कोलन। और कोलन क्या है हमारे, whenever there is a colon given between any of the
cells which we are talking about, right? That is A1 colon B3. अब इस जब कोलन लग जाएगा तो उन दोनों के बीच में कौन कौन से कॉलम्स हैं जो वो ऐड हो रहे हैं, वो हमें देखना है। तो जब हम बात कर रहे हैं A1 colon B3, that means we are talking about A1, A2, A3, B1, B2 and B3, 6 of them. क्लियर हुआ ये सबको? Sure, everybody has been clear? Okay, okay. क्लियर टू एवरीवन? ये समझ आया कोलन लगने का मतलब कहाँ से लेकर कॉलम कहाँ तक जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें काउंट हो गए हैं, ठीक है? ओके, नाउ एक्सेल डिवाइड्स फॉर्मूला इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब एक्सेल जो है वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, फॉर्मूले की जब भी बात आती है उसे डिवाइड कर देता है 3 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? तो पहला आता है आपका अर्थमेटिक, सेकंड आता है आपका कंपैरिजन और थर्ड आता है आपका रेफरेंस। ये तीनों आपके क्या है, फॉर्मूलेज हैं, अर्थमेटिक फॉर्मूला, कंपैरिजन फॉर्मूला एंड रेफरेंस फॉर्मूला। Okay, each group has its own set of operators and are used in different ways. अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों का सेट, उसका खुद का ऑपरेटर सेट है और वो डिफरेंट डिफरेंट वेज पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक फॉर्मूला, दैट इज ऑन पेज नंबर 47, राइट? Arithmetic formula are the most common type of formulas. जब भी हम बात कर रहे हैं, whenever we are talking about arithmetic formulas, just remember that it is the most common type of formulas being used by the user. Okay, these formula combine number, cell, reference and the function result with mathematical operators to perform calculations. Okay, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग कंबाइन कर देते हैं नंबर्स, फंक्शंस और विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए हमारे, प्लस, माइनस, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, सॉरी सेम। ओके, तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो गए, right? The following table shows the mathematical operators used in arithmetic formulas. तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो यूज होते हैं हमारे अर्थमेटिक फॉर्मूलाज में? ये आपको टेबल दी हुई है पेज नंबर 47 पे। आप सबको इसको ध्यान से देखना है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। आई होप यू ऑल आर हैविंग योर बुक्स। सबके पास है बुक्स? Okay. Now see, this is your arithmetic operators given in your books. Okay, this is your addition, you all know. Then next is your subtraction. Then next is your multiplication. Okay, after that you have division. Okay, and then you have your percentage, and then you have your expandation. Okay,
तो ये सारे के सारे आपके किस में आ गए? अर्थमेटिक फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, सबके पास बुक्स है? कैन यू ऑल सी दिस? राइट? ओके, सो नाउ एडिशन। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर एडिशन से, तो एडिशन यू ऑल नो, you all are so grown up now, you know how what is addition and how it is done. Then also example is given in your book, that is 10 plus 5 equals to 15. So this is comes under your addition part. Okay, next comes your subtraction. Again the example is given, 10 minus 5 equals to 5. Okay, so this comes under your subtraction formulas. Okay, then you have your multiplication, that is 10 into 5 equals to 50. Okay, so this comes under your multiplication part. Okay, then you have come with your division part, that is 10 divided by 5 will give you 2 as a result. That means it is or your comes under your division part, right? अब हम परसेंटेज की बात करेंगे, तो परसेंटेज हम लगा देंगे जब 10% कितना हो गया आपका 0.1, right? And last is your exponential. Okay, that is 10 for 10 with the 5 will give you what happened? Okay, okay, so this will give you the result of your 1 lakh, right? So these are the simple common arithmetic formulas which is given, and we can put them into our Excel table by putting equals to. ओके, तो ये एकदम सिंपल सिंपल से आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस. ओके, दैट्स इट. ओके, now next comes with you is your comparison formula. Okay, these are very important, very simple, and it is useful. Okay, a comparison formula is a statement that compares two or more numbers, text, cell contents or the function result. Okay, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की. जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, तो हम सिंगल पर्सन को तो कंपेयर कर नहीं सकते, या सिंगल नंबर को तो कंपेयर कर नहीं सकते, राइट? तो व्हाट वी नीड, टू और मोर. ओके, जब टू और मोर की बात आती है तो बात आती है कंपैरिजन की. तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, राइट? तो कंपैरिजन की जब हम बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन नंबर में हो सकता है, किसी टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकता है, दो सेल से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि उनके कंटेंट से. सेल मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, या तो सेल के अंदर जो कंटेंट्स है उनसे रिलेटेड भी हो सकता है. ठीक है, और आपका फंक्शन रिजल्ट. ओके, जो आपका रिजल्ट आया है, आपको किसी टू रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, किसी भी दो रिजल्ट को कंपेयर करना है, तो वो भी हो जाए. ठीक है, नाउ अब the following table shows the operators that can be used in comparison formula. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विद द फॉलोइंग टेबल में आपको क्या दिखाए गए हैं? ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं. ऑपरेटर्स जिनके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं. विद वेरी मेन, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे दोनों को, नंबर्स को, टेक्स्ट को, या जो भी हम कंपेयर करना चाहते हैं उनको. ठीक है, तो सबसे पहला आएगा इक्वल्स टू. ये सब आपको पता है, लाइक 10 इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 5. नो,
तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। देन यू हैव द ग्रेटर देन ऑप्शन, दैट इज 20 ग्रेटर देन 5। यस, इट्स ट्रू। तो आप क्या कर रहे हैं, टू नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स। तो आपने क्या लिखा, इक्वल्स टू आपको लगाना ही है आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपकी हर उसमें, हर एग्जाम्पल में आपके इक्वल्स टू लगा हुआ है, दैट मीन्स इक्वल्स टू तो आपको पुट करना ही है, एवरी टाइम यू हैव टू पुट इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू 20 इज ग्रेटर देन 5। Yes, 20 is greater than 5. So, answer is true. Next, less than 20 is less than 5. No, 20 is not less than 5. False. Then you have greater than equals to. Now they are comparing the number की जगह वो लोग compare कर रहे हैं आपके text को, right? That is A greater than equals to B. That means no, false. Okay. Then less than equals to 2. That is A less than equals to B. Yes, it is true. Now they have given the text, they have given the alphabet A, B to the number. So they are comparing with the numbers itself. Okay. Right. Then next comes last is your equals to A equals to B. Yes, true. Right. तो ये अब हम कब करेंगे, ये सारे के सारे जब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, हम उसमें नंबर्स पुट करेंगे, और उन नंबर्स को जब हम उनका फॉर्मूला निकालेंगे, और फॉर्मूला निकाल के जब हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो दैट टाइम वी विल यूज ऑल दिस कंपैरिजन फॉर्मूला। ओके। ओके, नाउ excuse me. Okay, Pranjal, you have joined just now. I hope you were not there in the class before. I am teaching you chapter number 3. Why you are asking like this? Okay, so this इतना आपको सबको समझ में आया? Have you clear with this? ये सबको समझ आया? Arithmetic formulas and your comparison formulas. Clear? Okay. ओके, आई वाज टेलिंग कि ये सारे के सारे जो भी फॉर्मूलेज हैं, अभी हम सिर्फ इनके बारे में समझ रहे हैं कि व्हाट आर दीज फॉर्मूलाज, अर्थमेटिक फॉर्मूलाज में क्या क्या होता है, ठीक है, कंपैरिजन में क्या क्या होता है, कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर, ठीक है, अर्थमेटिक इज यूज्ड फॉर द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, राइट? जैसे कि आपका एडिशन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे के सारे आपके उसमें काउंट होते हैं, राइट? हाँ, ठीक है, यस यस, आप टेलिंग। ओके, सो ये तो सब इसमें हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके अर्थमेटिक की हमने बात करी, तो उसमें हमारा क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमारे मेन है जो यूज हो गए, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन में बेसिकली जो यूज होते हैं उपलब्धि, दैट आर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये ट्रू फॉल्स इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को बताने के लिए। अदरवाइज जैसे जैसे हम वर्क करेंगे, जैसे जैसे हम फॉर्मूलाज पुट करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना कंपैरिजन करेंगे, राइट? एक्सक्यूज मी। Like example, 10 is greater than 5. Yes, it is true. Like 20 is greater than 3. Yes, true. 20 is less than 4. Yes, false. It is not true. So these all are the comparison, and comparison is always done between the two numbers. Two numbers or more than two numbers, right? But comparison हमेशा दो या दो से ज्यादा numbers में ही होगा। Now you are clear, Uplabdhi, Nupur, Nehal. Now you have understood. अनु समझ में आ रहा है? प्रांजल समझ में आया अब? So now you will read the chapter, page number starting from the chapter from where the chapter is starting from page number 46 till 47 and 48 and 49. Means starting from 46 to 49 you will read the chapter, so that when you will come to the next part, at least you can know where ma'am is teaching and what is going on in the class, right? ओके। फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करेंगे और फॉर्मूला को हम कैसे कॉपी करते हैं, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। समझ आया सबको? एवरीबडी हैड क्लियर? ओके ओके। सो नाउ bye all of you, take care, but before that don't forget to read the chapter. Please don't forget, read the chapter. Okay. Okay, and in our next class we'll continue with the rest of the thing. And if you are having any problem before we start our new topics, ask me before that. Okay. Okay, bye all of you, take care.